द्वारा मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ वी आर अंडर रिकॉर्डिंग नाउ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ। आपको क्या शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा दोबारा, राइट? विल टेक दैट। ओके, so G view non-empty open set. Let X belongs to G be any element. Since G is open set, so by definition of open set, it means there exists delta neighborhood of X, right? Such that, what we say? Such that X minus delta, this is delta neighborhood, is contained in G. यही डेफिनेशन था बच्चा लोग, ठीक है? Or I can say Ix is contained in G, where this Ix is this delta neighborhood. I denoting this by symbol Ix. Ix means neighborhood of X, neighborhood, delta neighborhood. ठीक है? So now see, X is arbitrary. So for every X, I can find such delta neighborhood which is contained in G. Right, students? Be responsive. आप response करोगे तो I want to convey one thing to all of you. Now through this F, I can analyze how much percentage you have attended the lecture. मतलब आप कितनी देर आप अटेंटिव रहे हो, कितनी देर आप अटेंटिव नहीं रहे हो, मैं आपको ये क्लास के एंड में बता दूंगा, ठीक है? तो जो अटेंटिव कम रहा होगा मैं उसका भी नाम लूंगा, राइट? जहां तक समझ आया? एनी क्वेश्चन? गुड, ठीक है। तो सिंपली जी इज ओपन सेट, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट इट इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। जो इसमें हमने नेबरहुड है उसको मैंने आई एक्स का नाम दे दिया। सो देयरफॉर आई कैन से, अब मैं बोल सकता हूं, सिंस एक्स इज आर्बिट्रेरी, एक्स इज आर्बिट्रेरी मींस इट मे बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है? सो देयरफॉर you can say Ix is contained in G for all x belonging to G. Can I say? क्योंकि G के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स के लिए हमें डेल्टा नेबरहुड तो मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। कैन आई से? व्हाई? बिकॉज x इज आर्बिट्रेरी। ठीक है? तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, राइट? सो फॉर ऑल x, तो सपोज करो हम एक एग्जांपल के लिए ना, जो टेक सम फाइनाइट एलिमेंट्स, इन सब के लिए I1 I2 ये सब सपोज करो I10 तक इसमें कंटेन्ड है जी में। अगर सभी कंटेन्ड है तो इनका जूनियर भी कंटेन्ड होगा, नहीं? When all are contained in G, it means their junior also contained in. So this implies union of Ix, where x belongs to G, is contained in G. Can I say like this? Yes, I can say. Why? Because all x is contained in G. So this is simple set theory, right? So हम इसको ऐसे लिखते हैं, सबसेट इक्वलिटी का इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आई हैव टू शो दैट दे आर इक्वल। नाउ आई शो इट ऑन द अदर साइड, जी सबसेट ऑफ दिस। ठीक है? अगेन as this element x belongs to Ix, right? This implies when I write, अब मैंने इस x एलिमेंट को सेट की फॉर्म में लिख दिया, x belongs to Ix है, when it is in the form of set it is contained in Ix, right? See again set theory concepts, belongs to and subset कब होता है ना? सेट फॉर्म में सबसेट लिखा जाता है, तो एज ए एलिमेंट हो तो वी राइट इट बिलोंग्स टू, राइट स्टूडेंट? then implies then I take union
of all singletons where X belongs to G, and this is contained in union of all X with X belongs to G. Can I say? Now you tell me ये इसको मैंने सर्कल किया है, ये किसके इक्वल होगा? They are singleton X and every X belongs to G. G के इक्वल, G के इक्वल होगा, राइट? Good. Right? So this implies this G is contained in union of Ix. यही भी हमारा टारगेट था, यही प्रूव करना था, अदर साइड ऑफ दैट इक्वेशन 1, right? So this is your equation number 2. So therefore from first and second we have G is equal to union of Ix, X belongs to G. So what is Ix? Where your Ix are open intervals. Open intervals. जैसे that is they are open intervals. तो यही हमारा पर्पस था. Show that every non-empty open set is a union of open intervals. Right? Any question, students? Okay. Now I want to give you people some exercises you have to do at home. Question number 1. You may have done or you may not have done, लेकिन you can do these questions very comfortably. Show that intersection of finitely many closed sets. Many closed sets is a closed set. तो आप लोगों ने किया हो, ठीक है? Question number 2. Show that intersection of arbitrary family of closed sets is closed. Question number 3. Show that the set, say S equal to 1, sorry, 1, where to start from 1, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on. ठीक है, that is 1 by n हो गया जी, है ना? Is neither an open set
nor a closed set. Right, students? These are the 3 questions which are at exercise for you people. You have to do at home. आप सॉल्व करके इस ऐप के थ्रू मुझे भेज सकते हो, ठीक है? You can upload your solutions from this app, right? Now, very important theorem, that is Bolzano-Brewster theorem. Bolzano-Brewster theorem. दोबारा लिखता हूँ मैं इसको. अपने माइक बंद रखोगे, चलो आवाज आ रही है. हाँ जी बच्चा, कहाँ रहते हो बच्चा? नेटवर्क क्यों वीक है? अभी तो 4G चल रहा है. कौन बोल रहा है? अरबिना बोल रही है. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वो तो लगाऊंगा. मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसमें तो हम आप लोगों की मदद कर नहीं सकते. जो आपका इंटरनेट है वो आपने मैनेज करना है ना? वो जिनकी अटेंडेंस, जिन्होंने कम अटेंड किया होता है, मैं उन्हीं को पूछूंगा आगे से, मुझे मालूम हो जाएगा. अब उन्हीं को मैं क्वेश्चंस पूछा करूंगा. एवरी इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए बच्चा, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंड्री सेट ऑफ आर एज ए लिमिट पॉइंट. मींस अगर आपके पास बाउंड्री सेट है और इनफाइनाइट है तो हमेशा लिमिट पॉइंट मिलेगा. पर सबसेट किसका होना चाहिए? रियल. हमेशा लिमिट पॉइंट होगा. दिस इज वेरी फेमस रिजल्ट, Bolzano-Brewster थ्योरम. बट आई थिंक इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं है. होना चाहिए, मुझे लगता है नहीं होने वाला कोई बात नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो प्रूफ हम इसको डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे इसको, लेकिन मैं आपको प्रूफ आज नहीं करवाऊंगा. इसका रीजन है कि प्रूफ इज लेंथी और आपको मैं कल का दिन पूरा प्रूफ के ऊपर ही रखूंगा आप लोगों का. बट फिलहाल आप इसका ना स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करो. एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंड्रीज सबसेट ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट. तो मतलब दिस इज अगेन ए टूल अवेलेबल टू यू पीपल सो दैट यू कैन एनालाइज क्या ये जो सेट आपके पास है, द सेट अवेलेबल इज बाउंडेड और नॉट. मींस अगर इनफाइनाइट होगा और बाउंडेड होगा तो डेफिनेटली इट विल हैव ए लिमिट पॉइंट. एक को लिमिट पॉइंट तो हमेशा मिलेगा मिलेगा. ठीक है. बट हाउ यू विल गेट दैट? बाउंड्री सेट आपको मैंने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बताई थी, राइट? ज्यादा आप लोगों को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से आपको a set of real numbers which is bounded must have a least upper bound, है ना? फिर
इनफाइनाइट भी है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके वी कैन प्रूव दैट इट हैज ए लिमिट पॉइंट, बट फॉर द टाइम बिंग यू मस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज ए डेफिनेशन। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। So a set is called finite set if it contains finite number of elements. सिंपल, इसकी और भी डेफिनेशन बनती हैं फाइनाइट सेट की ना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास, नेक्स्ट आ गया डेफिनेशन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? A set which is not finite, सिंपल, जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट सेट, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। राइट स्टूडेंट्स? Then we can have equivalent sets. इक्वलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस होता है। इक्वलेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम बताता है, इक्वल में सेट इज इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। वैसे सेट ए is said to be equivalent to set B. I can say if and only if there exists a mapping, there exists a mapping from A to B, which is both 1 1 and onto, which is 1 1 and onto. And on, right? नोटेशन क्या है इसका? नोटेशन इज नोटेशन यूज करते हैं ए इक्वल टू बी, दिस इज ए नोटेशन वी यूज। ठीक है, देन यू कैन हैव एग्जांपल्स इक्विवेलेंट का। सपोज यू हैव सेट ए इज ए बी सी डी ई, देन यू हैव सेट बी 1 2 3 4 5। अब देखो दोनों में 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट्स। तो वी कैन से दिस इज ए, दिस इज बी। इफ देखो, if there exist, this condition is very important, there exist means you must get at least one such map. If you get at least one such map, then they are equivalent. Okay, so I write this is a, so I write a, say it is a b c d e, this is 1 2 3 4 5. So a goes to 1, this is a map, we construct it. Now this map, right?
So here this is your map from A to B. So I say here f A to B as defined above is 1 1 and on to, right, and on to. So therefore here A is equivalent to B. बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या इक्विवेलेंट के लिए, वी हैव टू डेवलप वन वन मैपिंग, इसी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, W is set of whole numbers, set of whole numbers, and जो set is any set of natural numbers। क्या ये इक्विवेलेंट होंगे? आर दे इक्विवेलेंट? क्यों? Well, can we find a one-one mapping? Can we find a one-one mapping between these two? क्या हम डिफाइन कर सकते हैं मैप? बताओ मैप कैसा मैप होगा, बताओ। fx इज इक्वल टू, कहां से कहां तक लेना है मैप? डोमेन में किसको रखना है? डोमेन में नेचुरल नंबर, ऐसे। डोमेन में राइट। हाँ जी बोलिए। मैडम अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप बाद में बताइए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? डिफाइन मैप एफ डब्ल्यू टू एन एस एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, या एफ ऑफ एन बोल देते हैं, है ना। एफ ऑफ एन इज एन प्लस वन, ठीक है। सो दिस वे होल नंबर्स दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम डब्ल्यू, हम थोड़ा इजी भी करेंगे। W start from 0, 1, 2, 3, 4, so on, and natural number starts from 1, 2, 3, 4. So you can analyze. तो +1 हो रहा है, इसका मैपिंग ये आ गया, कोई परेशानी नहीं आएगी, चलता रहेगा, है ना, राइट। So this is your one set, this is your another set. But क्वेश्चन ये है, हर जगह तो आप ऐसे प्रूफ नहीं कर पाओगे ना कि आपको मैपिंग ही ड्रा करके दिखानी है। तो यू कैन प्रूव दैट दिस एफ इज, आपने प्रश्न पढ़ा होगा, एफ इज 1 1, यू कैन शो इट। ओके, 1 1 में क्या करते थे? यू टेक एफ ऑफ n1 is equal to f of n2, you show that n1 is equal to n2, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। n1 plus 1 n2 plus 1 and this implies n1 is equal to n2, खत्म हो गया, है ना। तो सभी मैप इस तरह के नहीं हो गया, आगे कॉम्प्लिकेटेड मैप भी आ सकते हैं, अलग तरह के सेट भी हो सकते हैं। on to means you have to take natural number, let n belong to this, then you have to find pre-image, then there exist n minus 1 belonging to W such that f of n minus this n minus 1 plus 1 is equal to n, right। on to भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट।
Is it okay? So therefore, F is 1 1 and onto. ठीक है? So therefore, set up this is equivalent to n. ठीक है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पे बताता हूँ सिंपल आप लोगों के लिए. That is as the exercise. E is set of even natural numbers. And your n is set of natural numbers. The question is E equivalent to n? होगा? देखिए equivalent, when I say equivalent, they must have same number of elements. And when we have an infinite set, जहां पे अगर आप ध्यान से देखो माइंड में क्या आएगा, E is subset of n, right? E is subset of n. एक मिनट बच्चा हमारा एक. तो E सबसेट ऑफ n है ना, बट बोथ आर इनफाइनाइट. अगर फाइनाइट होंगे ना तो जो इक्विवेलेंट नहीं होंगे, राइट? बट सिंस दे आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज समथिंग डिफरेंट फॉर इनफाइनाइट. सबसेट होना अलग चीज है, बट इनफाइनाइट में इक्विवेलेंट होना अलग चीज है. हो सकता है दोनों में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दे मे नॉट. तो दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि here E and N they are not equal but they are equivalent, right? तो जो इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे, बट जो इक्विवेलेंट होंगे दे मे नॉट बी इक्वल, राइट? तो क्या ये इक्विवेलेंट है? yes. So answer is yes. We define a map. तो इस राइट हम थोड़ा एक्चुअली लिखते हैं. We define a map F from N to E, ठीक है ना, as F of N twice of N. इवन नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं, है ना? तो देखिए 1 का इमेज कहाँ गया? 2 को, 2 का इमेज गया 4 को, तो सारे इवन नंबर कवर हो जाएंगे. बट अब हम वैसे नहीं लिखेंगे, अब हमें मैथमेटिकली वी हैव टू डू इट मैथमेटिकली. सो फर्स्ट वी शो f is 1 1. So by definition we write f of n1 is equal to f of n2. This implies twice of n1 is equal to twice of n2. Since they are non-zero numbers, they can be cancelled. 2. This implies n1 is equal to n2. हो गया, सिंपल है, राइट? सो f is onto में हमें प्री इमेज लेना होता है, तो we take some even number. So let say m belongs to E. So implies m किस तरह का? m इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर डिवाइडेबल 2, है ना? तो m किस फॉर्म का होगा? देन m इज ऑफ दिस फॉर्म. से m 2 into k, where k belongs to natural number, है ना?
मीन्स अगर जे m इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 का मल्टीपल होगा ना, फॉर सम k बिलोंगिंग टू n, am I right? So therefore f of k is 2k which is equal to m. तो प्री इमेज क्या मिला हमें m के लिए, दैट इज k. वेरी सिंपल, ठीक है चलो. So we have proved it. So therefore this f is 1 1 and on 2. मैंने आप लोगों को कल का लेक्चर दिया था. Oh, I forgot usually. So therefore I can say this set of natural number is equivalent to this w, right? It is w or e? E, sorry, even numbers. ठीक है. Now again I give one exercise for you people. If say O set of odd natural numbers, even हो गया, r के लिए देखते हैं, and n is natural numbers, right? The question is this set of natural number is equivalent to odd numbers? What should be the answer? Yes. Okay. So this question is for you people. Try it home. Right? Now write some important कुछ notes की फॉर्म में हम लिख लेते हैं. Notes means some interesting things you must remember. Equal sets are always equivalent, right? Equivalent sets need not be equal, क्योंकि डिफरेंट उसमें नंबर देखना, सिर्फ एलिमेंट नहीं देखने कैसे हैं. इक्वल में तो एलिमेंट ही एक जैसे होने चाहिए, है ना? ठीक है चलो. दूसरा an infinite set can be equivalent to its प्रॉपर सबसेट. पॉइंट समझ आया? एक इनफाइनाइट सेट है, वो अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकता है. जैसे नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर उससे प्रॉपर सबसेट था, लेकिन वो इसके इक्विवेलेंट था. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन अवर एक्सरसाइजेस एंड अबव, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना? और जो सेट इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ. ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ. इफ ए इज फाइनाइट, ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ. इफ ए इज इक्वल टू बी, राइट, देन either both A and B are finite, or are both A and B are infinite. Can we say like this? This is the conclusion what we have studied in today's lecture.
अगर इक्वलेंट है जहां दोनों इनफाइनाइट होंगे, जहां दोनों इनफाइनाइट, बट इट मींस एक फाइनाइट सेट हो दूसरा इनफाइनाइट हो, दे कांट बी इक्वलेंट, नेवर। ठीक है। नो, अब बताइए आप लोग बच्चा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, समझ आया आप लोगों को व्हाट वी आर स्टडी? मैथमेटिक्स को बच्चा एंजॉय करोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि यू मस्ट डू समथिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है। मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू विल एंजॉय, लेकिन एंजॉय करना चाहिए। अगर मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को, यू मस्ट एंजॉय मैथमेटिक्स, ओनली देन यू कैन डू समथिंग गुड। ठीक है। एंजॉय करना जरूरी है मैथ्स को। और कोई क्वेश्चन? चलो, एनी क्वेश्चन अभी तक जो आपने पढ़ा है? आप लोगों के माइनर एग्जाम हम ले लेंगे, आई थिंक 2 days, मे बी लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो फर्स्ट यूनिट आप लोगों का प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है। तो उसको तैयारी करो साथ साथ। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, कुछ हम यू कैन डिस्कस। तो आपको जो एक्सरसाइजेस मैंने दी हैं, जो सॉल्व दोज एक्सरसाइजेस, यू कैन गिव दोज एक्सरसाइजेस थ्रू दिस ऐप। इसमें ऑप्शन होगा आप लोगों के पास एक्सरसाइज अपलोड करने का, राइट? तो ठीक है। तो ठीक है, फिर हम कंप्लीट करते हैं आज का क्लास। थैंक यू।